हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड के बारे में देखते हैं। तो आज से हम लोग ये वीडियो को दोनों लैंग्वेज में ट्राई करेंगे रिकॉर्ड करने का, इंग्लिश एंड हिंदी। सो वी विल कीप आवर वीडियो इन बाय लैंग्वेज, but mostly we will prepare in the English so that most of the person can get the benefit of these all things. Okay, fine. So we are working on Angular or React, any of the language, but we are creating one of the application, and this application going to load all your requirement, display the UI, these all things. But the thing is that those type of application is known as monolithic application, where we going to create one application. Yeah, so we going to create one single application where backend, front end, database, these all thing going to integrate in your app, which going to load the UI, which is known as monolithic. So the things are that we having in the backend, we having microservices. In the front end, we have micro front end. So we can keep in mind that terms micro front end, microservices. Microservices belonging to the backend side, micro front end coming in the front end side. So what is difference between monolithic and micro front end? So the things are that if we will discuss on the monolithic application, so what are the things we have? Like suppose that we having user details, form, suppose that product lists are there. So these all things going to be listing on your single app. Single app, it means you will write the code on same application. Means there are one application and there itself be going to write. तो हिंदी में इसको डिस्कस कर लें। तो मोनोलिथिक एंड माइक्रो फ्रंट इन मोनोलिथिक एंड माइक्रो फ्रंट इन का डिफरेंस यही होता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन पे हम लोग एक ही ऐप पे सारा चीज लाइक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लिस्टिंग हो, प्रोडक्ट का डिटेल हो, कुछ कुछ भी चीज है वो सेम एप्लीकेशन में हम लोग बनाते आते हैं, जैसे आप लोग करते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन माइक्रो फ्रंट एंड क्या करता है कि आपका सिनारियो स्पेसिफिक आप स्प्लिट कर सकते हो। वी कैन स्प्लिट बेस्ड ऑन द सिनारियो फीचर, दीज ऑल थिंग्स। तो स्प्लिट करने से बेनिफिट क्या होता है, जिस ऐप का रिक्वायरमेंट है लोड होने का, आप उसी को लोड करते हो। सपोज दैट मोनोलिथिक में क्या होता है कि जैसे आपने ट्रिगर किया यूआरएल को, आपका सारा एप्लीकेशन लोड हो जाएगा वन टाइम, बी इट गोइंग टू लोड ऑल द एप्लीकेशन मींस कंप्लीट यूआरएल। और if you integrating lazy loading, then it's fine, component is going to load lazily. But due to the micro front end, it going to load your feature, means features are separately deployed application. So now let's move on the micro front. So you can see here. So micro front end, the major benefit of micro front end is we can create our application in different language. You can see right now here we having one micro app, means we having three micro app, and all the three micro apps are coming in the, those are developed in the, one is React, Angular, Vue.js, means all the three different technology. सो यहाँ पर हमारा तीनों एप्लीकेशन जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। माइक्रो फ्रंट एंड रिएक्ट में हो रहा है, एंगुलर और व्यू किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, आपको सारे को इंटरलिंक करना पड़ेगा, तभी आप डिप्लॉय कर पाओगे। सपोज दैट अवर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4200। अगर आपका 4200 पे चल रहा है, 4200 पे चलने पे क्या होगा कि इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे को ट्रिगर करोगे। ठीक है, तो हमने बेसिक समझा कि माइक्रो फ्रंट एंड होता क्या है। तो माइक्रो फ्रंट एंड में क्या हो रहा है कि हमारा फीचर स्पेसिफिक हम उसको सेपरेट कर देंगे। मे बी कंफ्यूज, नो वरी, लेट्स मूव ऑन द अनदर पिक्चर। चलिए, मैंने एआई के हेल्प से एक इमेज क्रिएट किया हूँ और देखते हैं कि इस इमेज में बहुत सारा डिटेल्स है। So here you can see micro frontend. There are one host and two remote application. मतलब क्या हो रहा है, एक होस्ट होता है, जैसे सपोज दैट आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो या आप लाइव कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हो या कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है कुछ भी, तो वहाँ पर एक होस्ट होता है। ऐसा नहीं होता जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्डर में आके और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नहीं चलता ऐसा। वहाँ पर एक होस्ट होता है जो क्या करता है, अनाउंसमेंट करती है, एंड दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कॉल ईच पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन। तो दैट इज द पॉइंट। तो
यहाँ भी हमारा सेम थिंग्स होता है। सो वी हैविंग वन एप्लीकेशन दैट इज होस्ट ऐप एंड so that is known as host application and remaining all the features which you creating in another language or single language same language लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, बट किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। बट वो सब एप्लीकेशन हमारा रिमोट कहलाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये होस्ट एप्लीकेशन है जिसको हम यहाँ पे सेल कह रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हो बट मोस्टली ये होस्ट होता है, ठीक है? ये सेल हो गया और आप देख रहे हो 2 अलग-अलग जो रिमोट ऐप 1 है, रिमोट ऐप 2 है। जो क्या दिखा रहा है कि रिमोट ऐप 1 जो है, उसके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग माइक्रो फ्रंट एंड है। इट मीन्स ये प्रोडक्ट का लिस्ट करेगा इस माइक्रो फ्रंट एंड के अंदर एंड रिमोट ऐप 2 के अंदर क्या हो रहा है, ये शॉपिंग कार्ट माइक्रो फ्रंट एंड है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग शॉपिंग कार्ट के बारे में कुछ रख रहे हैं लाइक ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट जो भी हो मतलब वो सब चीज़। ओके, सो सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो ये होगा जब हमारा सेल ऐप इन द सेंस होस्ट ऐप जब हम होस्ट ऐप को ट्रिगर करेंगे, तो हम होस्ट ऐप के हेल्प से दोनों एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने 2 इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आप 2 पे काम कर लेते हो, तो आप 2 से ज़्यादा कितना भी हो, सिमिलर अप्रोच होगा। लेकिन अगर हम 1 पे करते हैं, तो मे बी इट विल बी कन्फ्यूज़ हाउ टू कीप अदर एप्लीकेशंस। ओके? तो इसलिए मेरा हमेशा ओपिनियन रहता है कि आप एटलीस्ट 2 पे करो। क्योंकि 2 अगर आपने कर लिया इट मीन्स आप कितना भी एप्लीकेशन वहाँ है आप कर सकते हो। 2 पे नहीं 1 पे करते हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होती है। क्योंकि 1 जो होता है वो किसी भी सिनेरियो में वर्क कर जाएगा, ये चीज़। बट एनीवे यहाँ पर क्या हो रहा है, होस्ट एप्लीकेशन जो है वो हमें ट्रिगर करेगा रिमोट को एंड रिमोट टू, ऐप 1, ऐप 2 दोनों को वो ट्रिगरिंग जो होगी वो होस्ट से होगा। बट पॉइंट यहाँ ये है कि ये 3 एप्लीकेशन हमारे पास बनेगा। अगर हम प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन 3 एप्लीकेशन के हेल्प से होगा और 3 एप्लीकेशन जब आप क्रिएट करते हो, तो आप अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंगुलर का जो एप्लीकेशन होता है, वो 4200 पोर्ट पे चलता है। तो जब अगर 4200 के पोर्ट पे चल रहा है और 3 एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है, इट मीन्स तो तीनों एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको बारी-बारी से पोर्ट पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 4200 पोर्ट पे एप्लीकेशन रन होती है। बट ऐसा नहीं करेंगे, कारण क्या है, ये तीनों एप्लीकेशन सेम टाइम में रन होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, तीनों एप्लीकेशन सेम टाइम रन होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि होस्ट एप्लीकेशन जो है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम रिमोट 1, 2, 3 जितना भी रिमोट ऐप है, सारे को कॉल कर सकें। लाइक होस्ट अगर हमारा कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर कोई होस्ट है, तो आप सोच सकते हो कि अगर होस्ट किसी भी ऑडियंस को अगर कॉल कर रहा है, ऑडियंस इन द सेंस पार्टिसिपेंट को, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को वो कॉल कर रहा है, तो वो कॉल तभी करेगा जब उसके पास क्या हो, पार्टिसिपेंट हो। लेकिन सपोज दैट कि आपके पास मान लो कि होस्ट ने आपको कॉल किया और आप वहाँ हो ही नहीं, तो आप नहीं हो तो फिर कैसे होगा? मे बी आप समझ सकते हो, करेक्ट? तो जब हम वहाँ पर नहीं हैं, तो फिर हमारा अगर होस्ट हमें कॉल भी कर रहा है तो कहाँ से होगा? इट मीन्स तीनों एप्लीकेशन को लाइव होना चाहिए। मीन्स आपका होस्ट एप्लीकेशन भी चलना चाहिए, रिमोट 1, 2, 3 जो भी है, सारे चलना चाहिए। अब यहाँ पे अब आते हैं कि हम चलाएँगे कैसे? चलाने के लिए सिंपल तरीका है, 4200 पे किसी एक को चला दीजिए, दूसरे एप्लीकेशन को 4201 पे रख लीजिए, 2 पे, 3 पे पोर्ट नंबर हम चेंज कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर सीन ये होता है कि तो होस्ट एप्लीकेशन अगर है, उसको किस पोर्ट पे रखें? कोई कंपल्सरी नहीं है, आप किसी पे रख लो। बट बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम देखें थोड़ा-सा कन्वीनियंस पर्पज़ पे, तो होस्ट हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट एप्लीकेशन को हम रख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको 4200 रख देंगे। बाकी एप्लीकेशन को 1, 2, 3 देते चले जाएँगे, ठीक है? और सेम कॉन्सेप्ट ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। कारण क्या है, हमारा जो होस्ट एप्लीकेशन है, हो सकता है वो एंगुलर में हो। रिमोट एप्लीकेशन जो हो सकता है रिएक्ट में हो। रिमोट 2 एप्लीकेशन Vue.js पे हो। रिमोट 3 एप्लीकेशन हो सकता है जावा के स्प्रिंग बूट पे हो, जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क होती है। मुझे जावा का उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, उसमें स्प्रिंग नेट और हाइबरनेट होती है। स्प्रिंग और हाइबरनेट जो फ्रेमवर्क होती है, उसके हेल्प से हम यूआई क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन पे आप जाते हो तो जेंगो फ्रेमवर्क है, जो क्रिएट कर सकते तो किसी भी एप्लीकेशन पे हो सकता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि अगर वो सारे दूसरे लैंग्वेज पे हैं, तो फिर सारा होस्ट कैसे कॉल करेगा? होस्ट का सिर्फ़ एक ही मतलब होस्ट जो एप्लीकेशन आपका आइडेंटिफ़ाई करेगा,
वो सिर्फ़ यही ज़रिया है कि उसे यूआरएल चाहिए, दैट्स इट। आप किस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में रखे हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ होस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे यूआरएल मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो यूआरएल कैसे मिलेगा? तो हम लोग जब स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यूआरएल को कैसे हम लिस्टिंग करते हैं, बट अभी हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या होती है। तो मोस्टली अगर हम यहाँ तक बात करें, तो हमें समझ में आ गया होगा कि तो एक चीज़ और, तो इससे बेनिफिट क्या है? तो इसका मेजर बेनिफिट हमारा ये होता है कि सपोज़ दैट कल मान लीजिए कि रिमोट ऐप आपने एंगुलर में बनाया, ठीक है? रिमोट 2 आपने रिएक्ट में बनाया, रिमोट 3 आपका Vue.js पे है। तो आपका 3 एप्लीकेशन 3 लैंग्वेज पे, ठीक है? बट सपोज़ दैट कि कल कोई और नया लैंग्वेज आ जाता है और वो अच्छा मार्केट में काम करता है, परफॉर्मेंस वाइज़ या जो भी चीज़ है, तो वो अच्छा हो, सिम्प्लिसिटी हो, प्लस यूआई लोडिंग मतलब बहुत सारे बेनिफिट हों उस लैंग्वेज का तीसरा। और मुझे क्या सोचना है कि रिमोट ऐप जो 1 है हमारा, वो ऐप क्या करे कि वो चेंज हो जाए। उसे हम चेंज कर दें दूसरे लैंग्वेज पे, ठीक है? लाइक जो नया लैंग्वेज आया उसमें। तो क्या करेंगे? तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि पूरे अगर हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाते तो, पूरे लैंग्वेज को मुझे पूरा जो एप्लीकेशन हमारा रिएक्ट पे बना हुआ था या एंगुलर पे बना हुआ था या व्यू पे बना हुआ था, उसे मुझे न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के पूरा कोड मुझे लिखना पड़ता। आप सोच सकते हो पूरा कोड लिखना इम्पॉसिबल है फिर से। कारण क्या है? उसपे कंपनी सालों का साल मतलब टाइम लग जाती है प्रोजेक्ट में। मोर देन 1 ईयर कोई भी प्रोजेक्ट अगर होता है तो मैक्सिमम 1 ईयर चला जाता है। अब आप सोच सकते हो 1 ईयर के लिए कंपनी ने रिसोर्स पे जो खर्च की, मैनेजर हो गया, सीनियर उसमें डेवलपर होते हैं, जूनियर डेवलपर होते हैं, बहुत सारे टीम मेंबर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रम मास्टर, अजाइल, बीए वगैरह जो जितने भी चीज़ें हैं, सब होते हैं। अब उतना का कॉस्ट आप समझ सकते हो वो उस प्रोजेक्ट से है। तो अब वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर देखें तो मिलियंस करोड़ में भी पहुँच जाएगा। क्योंकि सभी का सैलरी जितना रहेगा उससे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, तभी तो एम्प्लॉयी को मतलब क्लाइंट को दे रहे क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करेगी तभी तो उसका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो सीन ये है। तो आते हैं ठीक है, वो सेकेंडरी है बट रीडिज़ाइन करना इम्पॉसिबल है। तो उससे बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम माइक्रो फ्रंट एंड बना लें। कारण क्या है? कल अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारा एप्लीकेशन है और ये प्रोडक्ट लिस्ट एप्लीकेशन मुझे चेंज करना है किसी लैंग्वेज में, सिंपल मैं क्या करूँगा कि इस सेक्शन को रीडिज़ाइन कर दूँगा। और हार्डली कितना लगेगा? मान लेते हैं ये एक छोटा-सा सेक्शन अगर रहेगा, तो मुझे लगता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर हो जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज खर्च नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये बेनिफिट होता है माइक्रो से। सेकंड चीज़, अगर मुझे कल चौथा मॉड्यूल आ जाता है, फोर्थ मॉड्यूल में भी, तो क्या करेंगे? सिंपल उसे हम नया क्रिएट करेंगे और होस्ट एप्लीकेशन से लिंक अप कर देंगे, दैट्स इट। तो जितना सुनने में ईज़ी लग रहा है, उतना ही काम करने में ईज़ी है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग है, नया चीज़ है। अगर आप काम नहीं किए हो, तो आप जान सकते हो। सेकंड चीज़, डिमांड वाइज़ जाएँ, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन से बेहतर होती है, इसलिए मार्केट में डिमांड भी है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि मेन एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर राउटिंग है, ठीक है, रिमोट ऐप है, प्रोडक्ट लिस्ट माइक्रो फ्रंट एंड हो गया, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट माइक्रो फ्रंट एंड हो गया। सेकंड चीज़ लोडिंग का बात करें तो ये डायनामिकली लोड करता है। कैसे? आप यहाँ देख रहे हो, डायनामिकली लोडिंग शॉपिंग कार्ट, डायनामिकली लोडिंग प्रोडक्ट लिस्ट। कारण क्या है? जब आपका पेज लोड हुआ है, तो उस टाइम आपका होस्ट एप्लीकेशन लोड हुआ है और होस्ट एप्लीकेशन के हेल्प से आप बाकी एप्लीकेशन को ट्रिगर करते हो, तो इट मीन्स वो डायनामिकली है। डायनामिकली है तो आप ये भी समझ सकते हो कि वो ट्रिगरिंग के बाद हमारा एप्लीकेशन का जो भी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल जो भी कंटेंट है, वो लोड होगा। वन टाइम तो लोड नहीं होगा। वन टाइम इन द सेंस फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हुआ, नहीं होगा। और एक चीज़ और हम भी समझ सकते हैं, तीनों एप्लीकेशन 3 डिफरेंट यूआरएल पे चल रहा है, मेरा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग बेसिक समझ गए, अब हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करके देखते हैं कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं, तो एआई को बंद करें, इमेज बंद करें, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, चलिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका है, हमने गूगल से निकाला है, बट आप चाहो कर सकते हो, नहीं तो हमने यहाँ पे रखा है, आप इसके हेल्प से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ माइक्रो फ्रंट एंड का काम करने के लिए जो चीज़ होती है
वो है फेडरेशन कॉन्सेप्ट। मैं एक बार आपको लेकर चलता हूँ कोपायलट या किसी भी चैट जीपीटी वगैरह किसी भी जगह पे, और थोड़ा-सा एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएँगे फिर से कम बैक करेंगे इस पे। ओह सॉरी, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो देखिए, तो हम लोग को मेन मेन चीज़ ये समझना है कि माइक्रो फ्रंट एंड बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है? जस्ट हम लोग एक बार जाते हैं, हाउ टू क्रिएट माइक्रो फ्रंट एंड का शॉर्टकट पे हम लिख सकते हैं एमएफई, एमएफई, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हाउ हाउ टू क्रिएट एमएफई। मैं एक लैंग्वेज डाल देता हूँ ताकि हमारा बेस को लेके चले, क्योंकि मैं दूसरा लैंग्वेज आता नहीं है इसलिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं क्या कि ये अ, एंगुलर इज कॉमनली डूइंग डन ऑन नेटिव फेडरेशन, ठीक है? आप देख रहे हो माइक्रो फ्रंट एंड इन एंगुलर कॉमनली डन यूजिंग नेटिव फेडरेशन रिकमेंडेड फॉर 16 प्लस और मॉड्यूल मॉड्यूल फेडरेशन वेब पैक बेस्ड। Since you are already working on Angular plus MFE, you clean production ready native federation setup। यहाँ पर आप भी देख रहे हो होस्ट प्लस रिमोट आ रहा है, ठीक है? एंड दिस इज मॉडर्न अप्रोच। तो माइक्रो फ्रंट एंड होता है क्या है कि एक लार्ज एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट ऐप में ब्रेक कर देना। हमने यही चीज इमेज में देखा कि एक हमारे पास होस्ट होगा जो क्या करेगा, होस्ट को हम लोग सेल बोल देते हैं, या हम लोग समझने के लिए होस्ट बोल लो वो भी चलेगा। और हमारे पास अलग अलग रिमोट ऐप जो डैशबोर्ड है, रिमोट टू ऑथ है, रिमोट थ्री है, जो रिपोर्ट है, अलग अलग जितना आप चाहो ब्रेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड चीज, यहाँ पर हम लोग एक पॉज लेकर एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो फ्रंट एंड हम लोग क्रिएट करते हैं ना, इसका क्रिएट करने का तरीका दो होता है। एक तरीका क्या होता है कि आप हर एक एप्लीकेशन को सेपरेट रेपो पे रखो। प्रोसेस नंबर वन, आपने एक रेपो क्रिएट किया, रेपो इन द सेंस रेपोजिटरी क्रिएट किया सिंगल, और मल्टीपल एप्लीकेशन रिमोट एप्लीकेशन को उसी में एज लाइक वर्क स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है वैसा कुछ, लेकिन मैं जस्ट एक चीज समझने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जनरली मैं आपको चलता हूँ, मेरे पास जो ऑलरेडी सैंपल एप्लीकेशन गई है, तो जैसे मान के चलिए ये रहा। यहाँ पर अगर आप एसआरसी पे जाओ, तो यहाँ पर एसआरसी के नीचे आपको एक यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर आ जाएगा। जब आप सेटअप करोगे ना, तो प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर आ जाएगा सिंगल रेपो में, एंड यहाँ पर ही आप न्यू फ़ोल्डर करो, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो रिमोट वन। ये आपको क्रिएट नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक वो सेटअप क्रिएट कर देगा कमांड कमांड के हेल्प से जब आप क्रिएट करते हो तो। तो इस टाइप से क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर रिमोट वन, रिमोट टू, रिमोट थ्री आ जाएगा। ये एक अप्रोच होता है। सेकंड अप्रोच ये होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल रखते हैं। सेकंड अप्रोच होता है कि हम लोग एप्लीकेशन ही अलग क्रिएट करें। एप्लीकेशन अलग क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया? मिस्टेक से, हाँ, एप्लीकेशन अलग कर क्रिएट करने का मतलब हुआ, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा एमएफई नाम से, ठीक है? एंड इस फ़ोल्डर के अंदर मैं बनाऊँगा एक और फ़ोल्डर समझने के पर्पज़ पे, न्यू फ़ोल्डर। यहाँ पर मैं लेता हूँ होस्ट, जस्ट होस्ट रख दीजिए, काफ़ी है। होस्ट हमने ले लिया, इसी फ़ोल्डर के अंदर न्यू फ़ोल्डर बनाइए, रिमोट वन हम रखते हैं, ठीक है? एंड अभी आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियरिटी मिलने लगेगी, जस्ट एक सेकंड, थोड़ा-सा हम टाइम देंगे इस पे, रिमोट टू, देन न्यू फ़ोल्डर, रिमोट थ्री। अब आपको यहाँ पर कुछ तो दिख रहा होगा कि इस माइक्रो फ्रंट एंड फ़ोल्डर के अंदर आपका 3 एप्लीकेशन बना हुआ है। एक होस्ट है, 3 रिमोट है, ठीक है? लेकिन जो पहले का जो हमारा अप्रोच था, इस अप्रोच में अगर आप आते हो, तो आप क्या देखते हो कि रिमोट 1 तो ऑलरेडी है, ओके सॉरी, चलिए,
तो आप इस अप्रोच में क्या देख रहे हो कि प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर एक हमारा है, इसके अंदर हमें रिमोट 1 एंड रिमोट 2 2 एप्लीकेशन यहाँ पे बना है। ओके, सो अब कन्फ्यूजन ये होना स्टार्ट हो रहा है ये कि किसको बनाएँ और कौन-सा अप्रोच बेहतर है। अब सोच सकते हो एक चीज़, जब हम कंपनी में काम करते हैं, जब आप ऑर्गनाइज़ेशन में हो, तो यू विल फील दैट वी आर वर्किंग ऑन आइदर और आप ऑर्गनाइज़ेशन में हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, कुछ भी, वी आर वर्किंग ऑन बिटबकेट, गिटहब, दीज़ ऑल थिंग्स, रिपॉजिटरी, करेक्ट? नाउ कंपनी में अगर आप देखो ना, तो क्या देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेपरेट रिपॉजिटरी ही रहता है, ठीक है? और थोड़ा-सा देखा जाए तो मैनेज करना भी ईज़ी होता है क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट रिपॉजिटरी होता है। सेकंड चीज़, अगर मैं आप ये भी सोचो कि अगर मैं इसके अंदर कल मेरे पास 10 प्लस रिमोट एप्लीकेशन है, आप सोच सकते हो इस प्रोजेक्ट का साइज़ क्या हो जाएगा? ये पूरा टू डू फ़ोल्डर जो हमारा है, इसका प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करेक्ट? क्योंकि इसके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा रेपो आ गया, तो और थोड़ा-सा टीडियस भी हो जाएगा और हैंडल करना भी इश्यू हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हो। तो किसी भी तरह से काम करो, काम सेम होगा, बट इससे बेहतर तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो टू डू नाम का जो फ़ोल्डर बनाना, ये आपका वर्क स्पेस बनता है, ना कि ना कि प्रोजेक्ट। ये वर्क स्पेस बनेगा और इसी के हेल्प से वो ट्रिगरिंग होगी। बट मेरे हिसाब से ये बेहतर थोड़ा-सा नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन रख रहे हैं, हैंडल करना थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग होगा, डाउटफुल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये मेरा खत्म हुआ, टू डू को बंद किया। ओके। अब हमारे पास माइक्रो फ्रंट एंड का सेपरेट फ़ोल्डर है। इसके अंदर हमने होस्ट, रिमोट 1, रिमोट 2 सारे रख दिया है। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ से मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। पहले मैं चलता हूँ होस्ट एप्लीकेशन में, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि माइक्रो फ्रंट एंड काम कैसे करती है, ओवरफ्लो सब कुछ। सेकंड चीज़, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बात आया फेडरेशन के बारे में, नेटिव फेडरेशन। तो एक्चुअली में माइक्रो फ्रंट एंड जो काम करता है, वो फेडरेशन पर ही काम करता है और फेडरेशन के लिए वेबपैक डिपेंडेंसी है। सेकंड चीज़, तो फेडरेशन कितने प्रकार का होता है? कुछ इसके लिए हम लोग डिटेल एक बार देख लेते हैं और फिर हम ये क्रिएट करने आएँगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास ऑलरेडी है वो सारा चीज़। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन, थोड़ा-सा डिटेल और जान लेते हैं। व्हाट इज़ हुँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि फेडरेशन होता बेसिकली होता क्या है? तो फेडरेशन एक टेक्निक है जो आपका एक एप्लीकेशन को दैट लेट वन एप्लीकेशन लोड पार्ट्स ऑफ अनदर एप्लीकेशन एट रन टाइम, मीन्स रन टाइम में आपका एक एप्लीकेशन जो है दूसरे एप्लीकेशन को लोड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। और स्पेशली दो तरह का दो होता है, मॉड्यूल फेडरेशन, नेटिव फेडरेशन। Instead of bundling everything together, app can share use code from each other dynamically। यही हमने फर्स्ट में भी बात किया जब हमारा इमेज जब था कि हमारा जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो डायनेमिकली हमें लोड होते हैं। ठीक है? ओके। तो बाकी चीज़ ये ठीक है। अब टाइप ऑफ फेडरेशन पे आते हैं। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इन यूज्ड इन एंगुलर। तो मेनली 2 तरह का यूज़ होता है, ठीक है? एक है मॉड्यूल फेडरेशन जो वेबपैक बेस्ड होता है, दूसरा हमारा है नेटिव फेडरेशन जो मॉडर्न एंगुलर में। तो वेबपैक वाले मॉड्यूल में क्या होता है, तो एंगुलर यूज़ दिस बिफोर एंगुलर 16। जब अगर आप एंगुलर 16 से पहले काम कर रहे हो, तो आप मॉड्यूल फेडरेशन पे काम कर रहे होगे और जिसके लिए वेबपैक 5 कंपल्सरी है। अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। यूजेस वेबपैक कॉन्फिग, शेयर मॉड्यूल बिटवीन ऐप्स, ठीक है? और फिर से क्या है, क्रॉस इसका है मैच्योर एंड वाइडली यूज्ड, वर्क विथ ओल्डर एंगुलर वर्जन, ठीक है? कोर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, वेबपैक डिपेंडेंसी, सर्वर बिल्डर।
तो हम लोग यहाँ से थोड़ा समझ गए, आइडिया हमें मिल गया कि वेब पैक क्या होती है। वेब पैक के हेल्प से हमारा मॉड्यूल फेडरेशन काम करता है और वो कंपलसरी है वेब पैक 5 होना। ठीक है। नेटिव फेडरेशन क्या होता है? ये मॉडर्न अप्रोच है। तो नेटिव फेडरेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय एंगुलर आर्किटेक्ट्स यूजेस ईएस मॉड्यूल नेटिव ब्राउज़र सपोर्ट। ठीक है। हाउ इट वर्क? नो वेब पैक रिक्वायर्ड। इट मीन्स वेब पैक का डिपेंडेंसी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है। तो आप एक चीज़ और कह सकते हो कि जो मॉड्यूल फेडरेशन एक्चुअली मॉड्यूल फेडरेशन जो है वो पहले का है, नेटिव फेडरेशन उसके बाद आया है। तो नेटिव फेडरेशन जो है वो ऑन टॉप ऑफ मॉड्यूल फेडरेशन है, ऐसा आप कह सकते हो कि इनहांस वर्जन है उसका। कहीं-कहीं आप चाहो चेक करोगे ना डिफरेंट एआई पे, तो आपको ये मिलेगा कि ये हमारा इनहांस्ड फीचर है। तो नेटिव फेडरेशन लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा मॉड्यूल फेडरेशन के टॉप पे इनहांस किया गया, बिल्ड किया गया। ठीक है। नो वे पैक रिक्वायर्ड। तो यूजेस ब्राउज़र नेटिव इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। प्रोस क्या होता है? तो फास्टर बिल्ड, सिंपलर सेटअप, फ्यूचर प्रूफ। ठीक है। कॉन्स क्या है? तो रिक्वायर्ड मॉडर्न एंगुलर 16 प्लस स्लाइटली न्यूअर इकोसिस्टम। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ कि आपको 60 एंगुलर 16 प्लस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेकंड क्या है कि ये न्यूअर है इकोसिस्टम में, तो हमें हो सकता है कि सपोर्ट सही ढंग से ना मिले, बट यस एआई है। और प्लस मोस्टली आज तो हम स्टैक ओवरफ्लो को नहीं यूज करते हैं, बट हमें सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग ने थोड़ा बहुत सिंपल टेक्निक को समझ लिया। अब हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कैसे करना है? आप अगर स्टाइल ले रहे हो, ध्यान रहे, अगर आपका सीएसएस का फाइल ये है, सीएसएस है, तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है गड़बड़ करे कुछ। चलिए, तो हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। पहले होस्ट पे जाते हैं, होस्ट फ़ोल्डर में जाते हैं एंड न्यू टर्मिनल को क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या-क्या फाइल आता है। ठीक है? एंड मैं सेम कमांड उठा लेता हूँ और ये कमांड एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जस्ट एंगुलर का कमांड है। ng new सेल, सेल मीन्स होस्ट एप्लीकेशन। ठीक है? हम कुछ भी रख दें, उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो ng new, तो चलिए होस्ट ही रख देता हूँ। ठीक है। वुड यू लाइक एंगुलर राउटिंग? यस। ये क्या दे दिया? पार्सिंग आर्गुमेंट टू चाइल्ड प्रोसेस विद सेल रूल सिक्योरिटी वनरेबिलिटी। ठीक है, ओके फाइन। लेट्स गो इनसाइड ऐप फोल्डर, app routing dot module dot ts is this. I think it's not going to create my latest application. Wait, let me do one thing. Let me delete this one. Delete. Open integrated terminal. Let me check Angular version ng hyphen hyphen. What is the command? Version. Yes. Oh my god, I have Angular 14 here. That is the case. Let me check inside this folder. ng version. What it's asking? Huh? Angular CLI 14 node version, this one. Then do one thing. Let me just give me one moment and app routes.ts. Let me give one moment and meanwhile I will pause my recording and I will
or otherwise tomorrow we can start the setup side. Today we come introduction. Today we will do fresh so that I will upgrade my Angular as well. So one thing we have to take care, we will work on Angular 21. Okay, so we will get all the latest feature, and even my playlist is also going on that. But कुछ कारण से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, बट हम लोग अब कंटिन्यूटी उसको रखने जा रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में पूरे सेटअप के साथ। और कल हम लोग सेटअप भी करेंगे, और कुछ एरर आता है उसे भी हम लोग वहीं पे सेम टाइम फिक्स करेंगे। तब उसके पहले हमें एंगुलर 21 को रखना है रेडी करके। चलिए मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।